یہ کانپور ہے، اتوار کی صبح ہے اور دریاپال سے آئی ہوئی سبزی بک رہی ہے۔ میری پشت پر بلدیہ کا بہت بڑا کتب خانہ ہے، سامنے انگریزوں کے زمانے کی مال روڈ اور اس کے ساتھ ساتھ پھول باغ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہلاکتوں کا حساب بے باک کیا گیا تھا تو یہیں کہیں درختوں پر کانپور کے باشندے سینکڑوں کی تعداد میں پھانسی پر لٹکائے جاتے تھے اور ان کی لاشیں کئی کئی دن جھولا کرتی تھیں۔ سنا ہے اب وہ درخت کاٹ دیے گئے ہیں اور شاید ان کے ساتھ ہی اس شہر کا ماضی بھی اس سے کٹ گیا ہے۔ یہ جو نوجوان یہاں سبزی خرید رہے ہیں انہیں شاید خبر تک نہ ہو کہ یہاں کیسا جوالا مکھی پھٹا تھا اور نانا راؤ اور عظیم اللہ خان نے سفید فام حکمرانوں سے کیسی ٹکر لی تھی۔ پہلے گورے حاکموں کا خون ایک دریا میں بہا تھا اور پھر کالے محکوموں کے خون سے کئی دریا بہائے گئے تھے۔ اس شہر کی نئی نسل کو کہاں معلوم ہوگا کہ سن 1913 میں کانپور میں کیسا معرکہ ہوا تھا، جب سڑک چوڑی کرنے کے لیے مچھلی بازار کی مسجد کا ایک حصہ گرایا جا رہا تھا تو اس شہر والوں نے فرنگی سنگینوں اور گولیوں کی باڑھ کو کس طرح اپنے سینوں پر لیا تھا اور کس طرح بچوں اور نوجوانوں کی لاشوں کے انبار لگ گئے تھے۔ کانپور والوں کے اعلیٰ حوصلوں کا حال اس روز مجھ پر کھلا۔ شہر میں ایک مذاکرہ تھا، عنوان تھا جگر مراد آبادی اور قومی یکجہتی۔ مسز گاندھی کے قتل کے بعد اس شہر میں نہ جانے کتنے سکھ مارے جا چکے تھے، ان کی کتنی ہی جلی ہوئی دکانیں اس وقت تک سیاہ پڑی تھیں اور بحث کا موضوع تھا قومی ایکتا۔ کوئی مہتا صاحب تقریر کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جھگڑے کی جڑ ووٹ ہے، کائست کائست کو ووٹ دیتا ہے اور برہمن برہمن کو۔ ووٹ کے طلبگار رہنما کا کام اسی نظام سے نکلتا ہے۔ پارلیمنٹ یا اسمبلی کی سیٹ کی خاطر وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ ذات پات مٹ جائے۔ چنانچہ مہتا صاحب نے کہا کہ اس کا علاج یہ ہے اس ووٹ ہی کو مٹا دیا جائے۔ مہتا صاحب کی بات غلط سہی، مگر انہوں نے بھری بزم میں بے دھڑک کہہ دی۔ مہتا صاحب کے بعد حلیم کالج کے پرنسپل عبدالحلیم صدیقی صاحب کی تقریر تھی۔ صاف گوئی کے معاملے میں وہ ایک قدم آگے بڑھ گئے۔ میں یہ بات بڑے وثوق سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کتنے ہی سیمینار کر لیجئے، کتنے ہی اس سلسلے میں مشاعرے کر لیجئے، کتنے ہی لٹریچر فراہم کر لیجئے، قومی ایکتا کا تعلق اس درسگاہ سے ہے، اس درسگاہ سے جو آپ کا گھر ہے، جہاں سے آپ کی نشو و نما ہوتی ہے۔ کیا میں پوچھتا ہوں کہ کسی کے بھی والد یا والدہ نے بچپن میں کسی بچے کو یہ سکھایا تھا کہ تم نہ ہندو ہو نہ تم مسلمان، تم انسان ہو اور ساری زندگی انسانیت کا پرچار کرنا؟ باتیں تو بہت لمبی چوڑی ہوتی ہیں اور چھپتی ہیں، لیکن میں یہ بات آپ سے، چونکہ یہاں پڑھے لکھوں کا مجمع ہے، بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ قومی یکجہتی ایسا ہوکس ہے، ایک ایسا نعرہ ہے، ایک ایسی نہ ختم ہونے والی خواہش ہے کہ جس کو ہم اپنے سینے سے لگائے ہوئے ختم ہو جائیں گے اور قومی ایکتا اس ملک میں نہیں ممکن ہو پائے گی۔ صرف ایک شخص نے تالی بجائی۔ بہت سے چہروں پر خفگی کے رنگ آتے جاتے صاف نظر آ رہے تھے، مگر کسی نے اٹھ کر کسی کے گریبان پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ اب باری تھی جناب صدر کی، اور صدر تھے کنور مہندر سنگھ بیدی۔ انہیں اس قسم کی تقریروں پر کوئی تبصرہ کرنا تھا، اور تبصرہ بھی چہروں کی بدلتی ہوئی رنگتوں کے بیچ، ابھی تک سیاہ پڑی ہوئی دکانوں کے پچھواڑے۔ کنور صاحب نے اپنا مخصوص لب و لہجہ ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جس نے جو کچھ کہا ہے اس نے خلوص دل سے کہا ہے، کسی نکتہ چینی، تخریبی نکتہ چینی کی نیت سے نہیں کہا، تعمیری نکتہ چینی کی نیت سے کہا ہے، اور تعمیری نکتہ چینی ہر ایک کاز کے لیے، ہر ایک کام کے لیے، ہر ایک مہم کے لیے واقعی بہت ضروری ہوتی ہے، ورنہ انسان غلط سلط طریقے بھی اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بہت اچھی ہی بات ہوئی، اچھی ہی نہیں بلکہ بہت اچھی بات ہوئی۔ کنور مہندر سنگھ بیدی ان لوگوں میں سے ہیں جو ہندوستان میں اردو کے چراغ کو روشن کیے ہوئے ہیں۔ کانپور کی سرزمین نے یوں بھی ان گنت دیے جلائے
जिनकी किरणें अभी तक गरीब की कुटिया को मुनव्वर किए हुए हैं। हसरत मोहानी पर यह शहर सदियों नाज करेगा। मुझे किसी ने बताया कि गरीबों के दुख दूर करने का उनका मिशन फिर से जी उठा है और चमनगंज के इलाके में खुदा के नेक बंदों ने हसरत मोहानी के नाम पर गरीबों के लिए एक अस्पताल कायम किया है। मैं वहाँ पहुँचा। हसरत मोहानी चैरिटेबल हॉस्पिटल, पुरानी सी तारीख सी इमारत, लेकिन अंदर जाकर देखिए तो नूर ही नूर भरा हुआ, नेकियों का, मोहब्बतों का और इबादतों का नूर। बहुत से डॉक्टर मरीज़ों को देख रहे हैं, बहुत सा अमला दुखियों को संभाल रहा है, दवाएं दी जा रही हैं, नुस्खे बन रहे हैं, इंजेक्शन लग रहे हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं और परेशान हाल लोगों की ढारस बंधाई जा रही है। अस्पताल के निगरां डॉक्टर अजीज़ अहमद थे, जिन्हें 18 साल की कामयाब प्रैक्टिस के बाद ये ख्याल आया कि दुनिया अपनी ही ज़ात तक तो महदूद नहीं, इसके आगे भी है। चुनाचे लाखों गरीबों की बस्ती के बीचों बीच ये बेमिसाल अस्पताल एक मीनार बनकर उठा। डॉक्टर अजीज़ अहमद बता रहे थे, इस महल्ले के चारों तरफ करीब करीब 10 लाख की पॉपुलेशन होगी, उसके बीच में ये हॉस्पिटल है। और जो गरीबों का इलाका है, जहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर मज़हब के हर तबके के लोग रहते हैं और हर तबके के लोग यहाँ आकर इलाज 1 रुपए का टिकट बनवाकर 10 दिन तक इलाज फ्री लेते हैं। तो कितने मरीज़ आपके यहाँ अंदाज़न आते हैं? हमारे यहाँ इस वक्त करीब 150-200 मरीज़ सुबह और शाम में आता है। तो इसके लिए ज़ाहिर है कि ये इसका ख़र्चा उस 1 रुपये में तो नहीं, इसके पीछे तो बेपनाह वसाइल और रिसोर्सेज की ज़रूरत होती होगी। वो आप कहाँ से हासिल करते हैं? ऐसा है कि हमारी ये सोसाइटी है, ये हर आदमी जो किसी भी ज़ात का भी हो, किसी भी कौम का हो, किसी भी फ़र्द हो, वो एक 100 रुपये का मेंबर बनता है और मेंबरशिप हमारे यहाँ फ्री है। पढ़े लिखे लोगों को मेंबर बनाया जाता है और जो हमारे यहाँ के खुशहाल लोग हैं, कैपिटलिस्ट जिनको कहना चाहिए, जो बिज़नेस क्लास है, ये हमारे अस्पताल में आते हैं। आने के बाद कोई 2000 रुपये, कोई 5000 रुपये, कोई 6000 रुपये, कोई 8000 रुपये डोनेशंस दे जाता है और वो ये कहते हैं कि आप दवा मंगा लीजिएगा या जो भी मेडिसिन्स की ज़रूरत हो, जो भी औजारों की ज़रूरत हो, वो मंगा लीजिएगा। ये थे कानपुर के गरीबों को सहारा देने वाले डॉक्टर अजीज़ अहमद। उन्होंने मुझे अपनी सोसाइटी की सदर महमूदा अशरफ साहिबा के बारे में बताया और फिर हर एक ही ने बताया कि वो जो खुदा कभी कभी किसी के दिल में बड़ी नेकी डाल देता है, वैसी ही एक शख्सियत महमूदा अशरफ साहिबा की है। उनके होने से हज़ारों बेसहारों को सहारा मिला हुआ है और लाखों घरानों से जहालत मिटी है और इल्म के चिराग चले हैं। मैं पहुंचा तो बेगम साहिबा मुलाकातियों के कमरे में बैठी थीं। 2 बेहद परेशान हजरात उन्हें अपनी परेशानी से आगाह कर रहे थे और वो धीमे धीमे लहजे में उन्हें तसल्ली दे रही थीं। जब वो दोनों उठकर चले गए तो मैंने महमूदा अशरफ साहिबा से पूछा कि ये 2 हजरात शायद अपना कोई मसला लेकर आपके पास आए थे। क्या मसला था वो? ये गुफ्तगू जो अभी मेरे से हो रही थी, वो यहाँ एक हडर्ड स्कूल है। पहले इसका स्टैंडर्ड वाकई में बहुत अच्छा था क्योंकि मेरे ख़ुद बच्चों ने इसी स्कूल में तालीम पाया, मगर अब रिसेंटली तो ऐसा हुआ कि आप सुन ही रहे हैं कि ये इनके बच्चों को इस तरीके से, यानी एक बेंच टूटने के ऊपर उसको ऐसा मारा कि बच्चे की हालत बिल्कुल ख़तरनाक हो गई और यहाँ तक हुआ कि इतना मेजर ऑपरेशन हुआ कि उसकी 10 इंच की आंत काटना पड़ी और वो अभी सीरियस कंडीशन में बच्चा है, हॉस्पिटलाइज्ड है, उसका ऑपरेशन भी हुआ है। और जो आप मेरे से गुफ्तगू कर रहे थे वो उसके वालिदैन थे। आपके पास ये लोग ये मसला लेकर क्यों आए थे? मेरे पास मसला लेके यूँ आए थे कि मैं यहाँ कानपुर में ज़्यादातर लोगों के सोशल प्रॉब्लम से टैकल करती हूँ और जो बेचारों का जो कुछ मेरे से होता है मैं इन लोगों की मदद करती हूँ, जिस तरीके से होता है उनको गाइडेंस देती हूँ। और आपका यहाँ की सरगर्मियों से और इदारों से क्या ताल्लुक़ है? ऐसे यहाँ का जो मुस्लिम ऑर्फनेज है, वन ऑफ द बिगेस्ट यूपी में ऑर्फनेज है मुस्लिम का, उसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ। वी हैव अबाउट 100 चिल्ड्रन और उसके हम लोग देखभाल करते हैं। वहाँ लड़कियाँ हैं और लड़के हैं, लड़कियाँ सेपरेट रहती हैं, पर्दे का पूरा इंतज़ाम है, बच्चों के खाने का, तालीम का, सबका बहुत आला इंतज़ाम है हम लोग। इस यतीम खाने को कौन चलाता है? इसके अखराजात कौन बर्दाश्त करता है? अखराजात ऐसे हैं कि डोनेशंस और ज़कात जो आती है उसी से सब अखराजात और किराया। और इसके अलावा आपकी क्या मसरूफियत? एक मुस्लिम जुबली गर्ल्स कॉलेज है, उसकी मैं मैनेजर हूँ। ये इदारा इनफैक्ट जो यहाँ के मुस्लिम एसोसिएशन जो है, जो चमड़े वालों का, जो हाइड चमड़े वालों का
समझिए एसोसिएशन है, वो लोग इन इदारों को चलाते हैं। तो उसमें अंदर में गर्ल्स का जो कॉलेज है उसको मैं देखती हूँ। वैसे हलीम डिग्री कॉलेज जो है उसमें ही है, और ऐसे प्राइमरी स्कूल्स भी चला रहे हैं। हलीम डिग्री की जो गर्ल्स सेक्शन है वो भी मैं देखती हूँ। करीबन जो जुबली कॉलेज है उसमें 1800 गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, पर्दा नशीन लड़कियां हैं। अच्छा, गरीब बच्चों की तालीम के लिए कोई इंतज़ाम कुछ है? गरीब बच्चों की तालीम का ये इंतज़ाम है कि जुबली के अंदर ही हम लोग काफ़ी वो देते हैं फ्रीशिप। जो बच्चे इस लायक होते हैं, मुस्तहक़ होते हैं, उनको हम लोग देते हैं। ये मुस्लिम एसोसिएशन जो है यही प्रोवाइड करता है। ये थी महमूदा अशरफ साहिबा। उनकी बातों से पता चलता था कि कानपुर के चमड़े के ताजिर अपनी 100 बरस की रिवायत के मुताबिक आज भी गरीबों को उठाकर ऊंचा मकाम दिलाने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। मैंने सोचा कि चलकर इन ताजरों से भी मिला जाए और देखा जाए कि इस नेकी का उन्हें क्या अजर मिल रहा है, उनकी चमड़े की सनत किस तरह फल फूल रही है। चुनाचे कानपुर की एक टेनरी में इकबाल अहमद साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि 100 से ज़्यादा टेनरियों में 5 से 7 हज़ार बाशिंदों को रोज़गार मिला हुआ है और भैंस का बेहतरीन चमड़ा तैयार हो रहा है, जिसका 60% हिस्सा मुल्क से बाहर जाता है। मगर मेरे एक सवाल ने बात का रुख मोड़ दिया। मैंने इकबाल अहमद साहब से पूछा कि कानपुर में चमड़े की सनत का मुस्तकबिल कैसा दिखाई देता है। लेदर इंडस्ट्रीज़ का फ्यूचर तो अब आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसमें जो हैं वो गुड्स में और जो उसके और अदर अलाइड आइटम्स हैं सब उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसलिए कि उसमें गवर्नमेंट से फैसिलिटीज़ भी जो उनको बोनस जो ऑल मिलता है वो ज़्यादा मिलता है उसमें, तो लोगों का रुझान ज़्यादातर उस तरफ हो गया है बनिस्बत फिनिश लेदर एक्सपोर्ट करने के या परचेज़ करने में। लोग ज़्यादातर गुड्स के ही चक्कर में रहते हैं कि यहाँ से गुड्स मैन्युफैक्चर करके और एक्सपोर्ट किया जाए। ये शायद बिल्कुल सच है कि सादा चमड़े के बजाय अब चमड़े की चीज़ें तैयार करने का ज़माना आ गया है और चमड़े की मसनूआत बनाने का कारोबार इतनी तरक्की कर रहा है कि मैं एक सनतकार खातून से मिला जो ख़ुद इस तरक्की पर हैरान थीं और ये समझने से कासिल थीं कि ख़ास तौर पे उनकी अपनी सनत इतनी ज़बरदस्त तरक्की क्यों कर रही है और किसके लिए कर रही है। उनका नाम है साबरा नसरीन सिद्दीकी। फूल वाली गली में उनका चमड़े का कारोबार है और मैं उनसे ये पूछकर हैरान रह गया कि आपके कारोबार का क्या हाल है। कारोबार तो माशाअल्लाह बहुत उरूज पर है, लेकिन शुरू में ज़रा दिक्कतें हुई थी। किस किस्म के, किस चीज़ का कारोबार? कारोबार मेरा हंटर का है। लेदर का वैसे तो दुकान है चमड़े की, लेकिन अब मैं जो हूँ तो हंटर बनवाती हूँ। यानी जिसे चाबुक कहा जाता था वो आप चमड़े के चाबुक बनाती हैं। अच्छा, फिर वो उसका क्या होता है, कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं फ़ॉरेन, लेकिन हम सप्लाई करते हैं। जैसे दिल्ली से आर्डर आया या मुरादाबाद से पार्टियां हैं जो आर्डर देती हैं तो हम उनको सप्लाई करते हैं। वो उनको फिर आगे बाहर के मुल्कों बाहर, जी हाँ, भेजती हूँ। अच्छा, तो कितने हंटर या चाबुक आप साल भर में बनाकर बाहर सप्लाई करती हैं? हमारे तो समझिए कि हर महीने 10,000, 15,000, 20,000 जितने हो जाएं भेजते हैं हम। अच्छा, तो ये बाहर जाते हैं, बाहर लोग इन हंटरों को क्यों मंगवाते हैं? ये तो हमारी समझ में भी नहीं आता कि लोग क्यों मंगवाते हैं और क्या काम आते हैं। ये इतना ज़्यादा इसकी तादाद बढ़ती जा रही कि समझ ही में नहीं आ रहा। अब इस वक्त समझिए जाजमो में हमारी 4 जगह से माल बट रहा है और करीब 1,000 से ऊपर औरतें हो गई जो बनाती हैं। उस रोज़ कानपुर में साबरा नसरीन सिद्दीकी साहिबा मुझे बता रही थी कि हर साल हज़ारों हंटर बनकर दुनिया में खुदा जाने कहाँ जा रहे हैं और किस काम आ रहे हैं। उस वक्त तो मुझे भी अंदाज़ा न था, लेकिन जब मैं बरतानिया वापस आ गया और कुछ अरसे बाद जनूबी अफ्रीका में जुल्म तले कुचले हुए कालों ने सड़कों पर निकलकर सदाए एहतजाज बुलंद की, तो टेलीविज़न पर हमने देखा कि जनूबी अफ्रीका की सफ़ेद फार्म पुलिस उन्हें डंडों या लाठियों से नहीं बल्कि चमड़े के हंटरों से मार मार कर खुद उनकी अपनी चमड़ी उधेड़ रही है। मैं ठिठक कर रह गया। मजलूमों की पीठ पर पड़ने वाले ये हंटर कहीं फूल वाली गली के बने हुए तो नहीं? क्या ये हंटर जाजमऊ से चलकर जोहानसबर्ग तक पहुँचे हैं? शायद ऐसा ना हो, मगर शायद ऐसा ही हो।
भैया